उर्मिला मातोंडकर, सनी देओल, अमृता सिंह, ना जाने कितनों के साथ काम किया है, कितनों को प्लेटफॉर्म दिया है, कितनों को लॉन्च किया है। बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, उससे भी अच्छे वो इंसान है। फर्स्ट राहुल रवेल जी ने बहुत सारी फेमस हिंदी मूवीज बनाई हैं, जिसमें कि बेताब, अर्जुन पंडित और भी बहुत सारी मूवीज जिसमें सनी देओल, ऐश्वर्या राय, उर्मिला जी, शाहरुख खान, इन सबके साथ काम किया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली राइज अप ऑन योर सीट्स and please give a guard of honor to our veteran, our legendary director, Mr. Rahul Ravel ji, the man who introduced Sunny Deol and Amrita Singh to silver screen, the one and only Mr. Rahul Ravel. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Rahul Ravel. The brain of Bengal and the power of Punjab, that was very important during our freedom struggle. All you know that. Mother is the Bengali and father is the Punjabi. So, Rahul Ravel ji. And Rahul ji, of course, you born to a filmy family. I mean, everything was there. And you were lucky that, I'm not saying lucky in a way that Rishi Kapoor was your friend since nursery. Yeah. And at a very tender age, at the age of 15, when people are having chocolate or cold drinks, that time you started assisting Raj Kapoor. So you have written a lovely book as a memoir on Raj Kapoor. Let's start with Raj Kapoor, then we'll come to all the other. Well, what can I say about Raj Kapoor? मुझे लगता है कि इससे बड़ी हस्ती इस इंडस्ट्री में हुई नहीं है और ना कभी होगी। जितना नॉलेज उनको था फिल्मों के बारे में वो मौजूद नहीं किसी और के। और मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। Whatever little I know is whatever I have learned from him, and I'm very fortunate for that. Do you recall your first meeting, not as Chintu's father, but as, of course, he was Raj Kapoor before then. Yeah, naturally. But as when Chintu ji, Rishi Kapoor ji asked you to, why don't you assist, or how the things happen, if you can a little bit elaborate. I went to, I'd finished my school, and I was a 15-year-old. And Chintu called me up and said, you got holidays. Because I had 6 months off. मैं प्लान कर रहा था कनाडा जाके न्यूक्लियर साइंस पढ़ने का। Yes. तो चिंटू ने कहा मेरे से कि राहुल पापा कल से शूटिंग शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम जोकर के वो पोर्शन जो सर्कस वाला था वो एपिसोड से, और बहुत सी रशियन लड़कियाँ आई हुई हैं, यंग लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है सेट पे, तो इट्स वेरी नाइस टू वॉच। तो मैंने कहा यार ये तो आइडिया बहुत ही अच्छा, अभी एग्जाम खत्म हुए, टू गो एंड वॉच यंग गर्ल्स इन शॉर्ट क्लोथ्स, नथिंग बेटर देन दैट। That's to Russia. और जब मैं गया वहाँ पर, तो मैंने सामने देखा राज अंकल, उन दिनों मैं कॉल हिम राज अंकल, वो देन ही चेंज टू राज साहब बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैंने एक शख्स को देखा जो he was at the center and the command of everything. There was one man controlling about 5,000 people alone. At the tip of his finger, he was controlling the unit, the crowd watching, the Indian circus artists, the Russian circus artists, actors, and meticulously this man was conducting everybody, knowing what he's saying. He just stood there and I was mesmerized looking at him. फिर वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, mesmerized me. तो then I got to this. अच्छा ये बुरा हुआ कि जो लड़कियां हमने देखी थी हमने देखी नहीं, और आज मैं ढूंढ रहा हूँ लड़कियां दिखती नहीं मुझे आजकल। हम वो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। खैर तो उसके बाद फिर वो शूटिंग की रोज सुबह होती थी, आई यूज्ड टू गो एवरी डे, एंड देन वन डे आई टोल्ड माय फादर आई वुड लाइक टू जॉइन हिम एज असिस्टेंट। आई गॉट 6 months बिफोर आई गो टू कैनेडा। So Papa spoke to Raj Saab, and Raj Saab said, I saw you on the set, Subroz Athe, and I could see the dedication. But मैं इतना बोलूँ तुमको कि तुमको 3 महीने काम करना है, 3 महीने कर लो, 6 महीने के बाद जाना है चले जाओ, लेकिन इस इंडस्ट्री का कीड़ा जब किसी को काटता है ना तो वो छोड़ता नहीं है। तो ये तुम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो कि तुम भूल जाओगे।
तो मैं कहा पापा से, मैं कहा ये क्या है यार, मैं कनाडा तो पक्का जाऊँगा। तो रात से बोला कल से आ जाओ काम पे। तो वहाँ से और फिर मैं वो भी भूल गया, मैं ना कनाडा गया, यहीं रह गया। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जब ये हुआ कि हाँ मैंने काम यही करना है, तो राज अंकल बिकेम राज साहब। जो मेरी किताब है उसके अंदर वो पूरा जर्नी मैंने डिटेल में दिया हुआ है। एंड अभी तो मेरे को साइंस की तो कुछ याद ही नहीं है कि और मैथमेटिक्स इन विच आई यूज्ड टू गेट, आई हैड गॉट 99% इन माय बोर्ड एग्जाम्स। मुझे अभी 1+2 भी करने के लिए In सोचना those पड़ता है। days, in those days, those no? days, In you those know. days, it is So not your time. Now I even to add 1+2 at times I think I need a calculator. You know, I've got what to do. And the journey has been very fruitful. God has been kind to me. My journey has had, like everybody's life has its ups and downs. Yeah. My journey's also had its ups and downs. And I mean, like today I've reached here. You know, I'm in the Chandigarh University for the Chandigarh Film Festival. It's a great honor for me. Thank you. And you know, We are honored and actually. receiving the Lifetime Achievement Award yesterday was one of the biggest honors of my life. And I think God has been very kind to me. But I should not sit back और ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैंने सब कुछ अचीव किया है। मैंने नहीं किया, क्योंकि अचीव करना बाकी है। और जहाँ तक सीखना है, जो आदमी ये कहे आपसे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बात मानिए, वो कुछ नहीं जानता। True. क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है या जर्नी एक ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग आदमी सीखते रहता है। आज जब मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करता हूँ, और तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं करना चाहता हूँ, ये मैं अपने स्वार्थ से कर रहा हूँ। बिकॉज आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ बाई मीटिंग यू पीपल। तो ये आगे करके मेरा नॉलेज बढ़ा रहा है, मुझे पता लग रहा है कि किस किस्म के लोग हैं। सो आई हैव टू थैंक एवरीबडी फॉर दैट, यू नो, दैट यू आर हियर to help me with my knowledge. Thank you. So humble of you. Now I'm coming directly to your career. I mean, of course, your career has started already, but you were the one who introduced Sunny Deol, Amrita Singh in their first film Betab. Then, of course, Kumar Gaurav and Vijayta Pandit in Love Story, and Aishwarya Rai, Kajol, of course. Paresh Rawal. Paresh Rawal. Kamal Sadhana also. This boy from Haryana was a very popular actor, no, Yashpal Sharma. Yashpal Sharma, yes, of course. Yashpal ji is very regular to our festival also. All of this big name. I mean, Sunny Deol is still a star. Aishwarya, of course, Kajol, of course. And, you know, here is the kingmaker is sitting in front of you. No. I'm not the kingmaker. I've not made any stars. They've all become stars with their own hard work. Sure. And everybody should remember one thing. Your work gives you the results. Your work, you have to be dedicated absolutely to your work. But of course, there is a like, you know, they have seen the dedication. You got the best compliment of your life that you told me that Raj Kapoor ji told ki, I mean, I got the, if you can tell you in your word. In your own word, the Raj Kapoor said the best compliment for you. He said that I got the best assistant. Yeah. I mean, that was. Yeah, he did, because when I started working and with him, तो मैं 15 साल का था जब मैंने काम करना शुरू किया। इंडस्ट्री में लोगों ने ये कहा राज साहब से, यार ये क्या एक बच्चे को असिस्टेंट रख लिया है। और फिर राज साहब को भी कहा किसी ने कि यार आपने एक बच्चे को रख लिया असिस्टेंट, ये क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो राज साहब ने कहा देखो उसकी उम्र से फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना कहूँगा कि इससे अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर ना मेरे पास कभी था, ना है, ना कभी होगा। So that was a big compliment for me. Of course. And how Betab happened? See, इससे पहले बेताब से पहले मैंने लव स्टोरी बनाई थी जी। और लव स्टोरी कंप्लीट हो गई थी, पिक्चर रिलीज होने वाली थी, और मेरा राजेंद्र कुमार के साथ कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। Yes. और राज साहब की दोस्ती बहुत थी, और राज साहब मेरे लिए मतलब जब मैं किताब में कहा है कॉल्ड हिम बाबा राज कपूर, जो एक आदमी है जो हर चीज़ जानता है। और आपको क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितने चीज़ें थे वो मेरे को पहले बताते थे कि ये होगा, अच्छा। और वो एग्जैक्टली इट हैपेंड। Oh my God. अच्छा, इन द होल अच्छा, बुक, अच्छा। इट्स देयर इन द होल बुक। तो उन्होंने मेरे से कहा उस ज़माने में उनकी बेटी की मंगनी
कुमार कुमार गौरव से हुआ था। फिर भी रात साहब ने कहा कि देखो फिल्म कंप्लीट हो गई, मैंने बहुत तारीफ सुनी है, पिक्चर लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार की सूट नहीं कर रहा। उसको लगता है यार मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, जो फिल्म देखते हैं, जो प्रीव्यूज में देख रहे हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि डायरेक्टर बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं बोलता है कि जी आपने फिल्म बहुत अच्छी बनी। तो रात में कहा, मैंने उसको कहा कि भाई फिल्म आखिर डायरेक्टर की होती है, वो डायरेक्टर किया होती, मैं हूँ इसलिए फिल्म अच्छी बनी। तो रात साहब ने कहा बेटा ध्यान रखना। खैर फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज पे आ गई थी, तो मेरे कुछ डिफरेंस आ गए राजेंद्र कुमार साथ। तो मैंने गुस्से में, ये तो था ही कि, तो मैंने गुस्से में कहा कि जी मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम निकाल दीजिए इस फिल्म से। तो वो चल पड़े, बोले हाँ वेरी गुड, निकाल देता हूँ। तो मेरे को लगा कि यार एक आदमी इतना खुश हो गया। और फिर मैंने देखा जो पब्लिसिटी प्रिंट की थी उसमें डायरेक्टर का नाम ही नहीं था, मतलब ये तैयारी में थे करने के लिए। खैर मैंने बोल दिया हटाओ तो। अच्छा मैं भी थोड़ा सर पे रहा था। अब बाहर निकल के मुझे लगा यार मैंने कोई गलत तो नहीं किया, तो मैं सीधा बस में बैठा और आर के गया रात सबको मिलने। और मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ है। तो रात में कहा दिस इज अ वेरी ब्रेव थिंग, ये वाह, इसके लिए बहुत बड़ा ये जिगरा करने के लिए जिगरा चाहिए। और लेकिन तुमने कर लिया, अब पीछे तो नहीं हटोगे। मैं नहीं हटूंगा सर, मैं आपसे सीखा पीछे नहीं हटूंगा। बोला मैं एक चीज़ याद रखना, राजेंद्र कुमार तुम्हारा नाम नहीं दे रहा लेकिन अपना नाम देगा, वो चाहता है यही है, एंड ही इज सक्सेसफुल in doing this. Yeah, but we all know the history. But see that you know today, I'll tell you at that time. तो ये मेरे को बहुत अपसेट कर दिया कि मेरा नाम नहीं आएगा लेकिन नाम किसी और का आएगा। तो मैंने बहुत सोचा, रात में सोया नहीं। अगले दिन मैंने अपने, मेरा दोस्त था वकील साहब, उनसे मैंने बात की और कोर्ट में केस फाइल किया अपने। और मैंने एफिडेविट्स लिए अमजद खान वगैरह सबसे, वो सब ने कहा कि ये फिल्म तो पूरी राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया, एफिडेविट दिया उन्होंने। तो जज का जजमेंट ये था कि भाई अपना नाम देना है या नहीं देना है वो राहुल रवेल के ऊपर है। अच्छा, वो आप उनको ना फोर्स कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपना नाम नहीं दूंगा तो आप किसी और का नाम नहीं दे सकते। oh lovely. इस फिल्म में तो ये लव स्टोरी एक ही फिल्म है दुनिया में जो रिलीज हुई थी जिसमें डायरेक्टर का नाम नहीं है। Yes. It's the only film in the world which released without a director name. Yeah, it's called Rajendra Kumar Presents. Just that much. It has no director's name. और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न या जो भी मीडिया में आना चाहता है कि लाइफ में एक चीज़ याद रखना, जब तक आपकी ग्राउंड वर्क सॉलिड नहीं हो जाए, आपने इस्टेब्लिश नहीं कर लिया, तो भैया शादी मत करना। हाँ, क्योंकि शादी जब नहीं होती है तो आप कोई भी कदम उठाने को तैयार होते हैं, आप सोचते नहीं आगे पीछे, जो आपका हार्ट कहता है, दिल कहता है वही करते हैं। तो ये हुआ लव स्टोरी में। मैंने कहा और मुझे नाम हटा दिया। और फिर इंडस्ट्री वाले तो बोलते रहे अरे राहुल रवेल क्या करेगा यार, बच्चा था, उसने वही राजेंद्र कुमार ने बनाई होगी पिक्चर। खैर पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी और इंडस्ट्री वाले कह रहे थे ये तो राजेंद्र कुमार ने बनाई होगी। तो 3 साल मेरे पास काम नहीं था। तो मुझे लगता था यार ये मैं क्या पागलपन किया मैंने, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी मत सोचिए कि आप हार गए, तो सोचिए कुछ ना कुछ होगा। मेरे को लगा तो उस टाइम पे कि मैं हार गया हूँ। मैं सोचता थी भी क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर धर्म जी ने मुझे बुलाया और धर्म जी ने कहा कि राहुल तुम मेरे बेटे की पहली फिल्म डायरेक्ट करोगे। तो मैंने कहा यार क्या हो गया धर्म जी को, मेरे से पूछे कि तुम डायरेक्ट करोगे बेटी की फिल्म, मतलब इससे बड़ा ये क्या मिलेगा मुझे। तो उन्होंने ये कहा मुझे कि देखो मैंने लव स्टोरी देखी, बहुत ही कमाल की फिल्म है, लोग बोलते हैं तुमने नहीं की, राजेंद्र कुमार ने की है। मैं मानता हूँ, चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि तुमने नहीं की, लेकिन किसी ने तो की है और वो आदमी राजेंद्र कुमार नहीं हो सकता। तो कौन होगा? मेरे को लगा तुम ही हो गए। तो ये फिल्म मैं तुमसे बनवाऊंगा बेटी की। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। धर्म जी ने वो किया, फिर बेताब आई, फिर अर्जुन आई,
तो दिस इज हाउ द होल थिंग। बिल्कुल, and they became almost your family, Dharamji, Sunny, Bobby. Absolutely. Great. And you know, we all are very sad. The whole India, the whole world is very sad what happened in Pahalgam just couple of days See, back. what happened in Bison is a very sad, it's a very, very sad thing. And Bison is a location. मैंने लव स्टोरी की शूटिंग पहलगाम में काफ़ी की थी, मैंने जी। बेताब की भी की थी बहुत, बीवी बीवी की भी की थी। बट लव स्टोरी के टाइम पे जो गाना था याद आ रही है तेरी याद आ रही है, वो हमने शूट किया था बाइसन पे। अच्छा, बहुत ही मुश्किल लोकेशन था कि मैंने सुना था एक जगह यार बाइसन बहुत खूबसूरत है, तो हम गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं था जाने का, अभी भी आज तक रास्ता नहीं है, अभी भी रास्ता तो नहीं या तो खच्चर पे जाना पड़ता या पैदल। तो ये 4 किलोमीटर खच्चर पे जाना, ऊपर से इक्विपमेंट जाना है, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि आदमी, तो हमने गाना जब शूट किया वहाँ पर 3 दिन लगातार आना जाना रहा। बट मुझे अभी वो जगह याद तो कभी भूलता नहीं, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक के बाद मुझे वो जगह की तस्वीर आंख के सामने आ रही है कि वो टेररिस्ट कहाँ से निकले होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ जो जंगल है उसके आसपास वो इतना गहना है कि आदमी निकल जाए कहीं से भी। तो वहाँ से एक जगह थी उससे भी 6 किलोमीटर ऊपर, वो है तुलसियन लेक। तो मैं वहाँ भी गया था, हम फिर खच्चर पे गए थे देखने के लिए। मैं इससे खूबसूरत जगह मैंने देखी नहीं है, लेकिन वहाँ शूटिंग बहुत, आज को तो लोग कर हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे, बट दैट टाइम देयर वाज नो हेलीकॉप्टर पॉसिबल। So, you know, it's a very sad thing of what happened. And, yes. And the same valley where you have shoot such beautiful sequence, and what happened there now. very, very sad. And your connections with Chandigarh, that's everybody should know. My connection with Chandigarh is that मैं चंडीगढ़ में आया था जब मैं बहुत ही छोटा था, एंड मुझे अभी तक चंडीगढ़ याद है क्योंकि हमारे एक पापा के दोस्त थे अम्बाला में, जिनके सिनेमास काफ़ी थे। अच्छा। तो उनके साथ हम आए थे पंजाब घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो तब चंडीगढ़ आए थे। और फिर मैं आया था जब शिमला गए थे हम फैमिली के साथ, तो उसमें मेरी फैमिली, बी आर चोपड़ा साहब की फैमिली, तो वहाँ भी हम चंडीगढ़ आए थे, यहाँ से फिर शिमला गए थे। और बेताब कि बॉबी के रिलीज पे बॉबी हिट हो गई थी, तो राज साहब सबको ले गए थे पंजाब, बहुत चली थी यहाँ पर, और चंडीगढ़ भी आए थे हम जी। और लास्ट में आया था चंडीगढ़ 1982 में। 82 के बाद मैं आ जाया हूँ, और यहाँ पर मैं आया था कि लव स्टोरी के लोकेशन ढूंढने के लिए हम हिमाचल गए थे। तो हम आए थे और चंडीगढ़ में रुके थे यहाँ पर 2 दिन, और ये इत्तेफाक है कि जब भी हम चंडीगढ़ आए तो मैं रहा हूँ माउंट व्यू होटल में, चाहे बच्चा था आज भी माउंट व्यू में ठहरा हूँ वहाँ पर। और आई लव द सिटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू शौतानु एंड टू राजेश जी एंड राजेश शर्मा जिन्होंने फेस्टिवल And our entire team, I mean, they really पूरा working very टीम hard सब to लोग जो make हैं it possible. बहुत ही अच्छे लोग हैं। You have launched so many stars. They all are stars. Of course, as you gave the credit to themselves that, you know, they have worked very hard, so that's why they are star today. But after they become star, any star tantrum happened with you? Never with me, never. I've been lucky. Today, and especially 2 people I will really quote. Why 2 more? There is Sunny, there is Kajal, there is Paresh Rawal, there is Yashpal. Okay? If I enter a room where they are sitting, they will stand. That's They will respect not is sit down till I sit. कभी नहीं। वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और that touches me. Because स्टार वो बने अपनी मेहनत से। जी। देखिए, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं किसी को स्टार नहीं बना सकता हूँ, ना एक्टर बना सकता हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं घुमाऊँ और कहूँ एक्टिंग करो, तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। वो आपसे आना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो मेरा काम तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, आगे फिर आपका काम। बिल्कुल बिल्कुल।
Why don't you tell the full name and the publishers of your book so they can, the student, those who are interested, they can find it in Amazon? Yeah, or... जो किताब है इट्स कॉल्ड राज कपूर द मास्टर एट वर्क. इसके एडिशन हिंदी में भी हैं और मराठी में भी हैं और पब्लिशर इसके ब्लूम्सबेरी. अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. Okay. तो मेरा ख्याल है इंटरनेट सभी होगा तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. बिल्कुल बिल्कुल. And I'm not, trying to push my book or something, but for a person who wants to know about cinema, it is a very, very good thing. Yes, to do. In fact, yes. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक लड़का आ गया मेरे पास from the crowd and उसने कहा सर मैंने आपको पहचान लिया, मैंने किताब पढ़ी है and it really has shown me what you do in filmmaking. क्योंकि ये फिल्म ये जो है what I've written in the book is what राज कपूर made his films. कि वो कैसे शूट करते थे, क्यों करते थे, तो ये सब वो किताब में. तो if there any questions anybody is got, देखिए क्वेश्चन में मैं आपको उनको एक बात बताऊं जो मैंने राज साहब से सीखी है. जब मैं नया नया असिस्टेंट था तो राज साहब की पुरानी फिल्में वो बैठ के देख रहे थे. राज साहब एक रील बनाई थी उन्होंने जो उनके फेवरेट सीन्स थे और तो वो सीन्स मतलब थे ऐसे कि आदमी पागल हो जाए और वो बैठ के देखते थे और मैं थिएटर में पीछे खड़े रहता था. तो एक दिन उन्होंने मेरे को देखा और बोला कि तुम कुछ सवाल पूछना चाहते हो. तो मैं कहा नहीं सर. बोले देखो बेटा जो पूछना है मेरे से पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा. नहीं तो जिंदगी में कभी तुम पछताओगे कि यार ये सवाल का जवाब मैंने क्यों नहीं मांगा था. और ये मैं कह रहा हूँ कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए. नो आंसर. Well, before they start, I can ask you one thing. Rahulji, you have two sons. Have you ever pushed them to come to cinema or choose their own field? They were open to choose their own field. They decided to come to cinema. मेरा जो बड़ा बेटा है भरत नाम का, पहले वो असिस्टेंट था यशराज में. फिर gradually he made his way to become practically Adi Chopra's right-hand man. Adi would not make a decision without talking to Bharat. And Shiv also joined Yashraj Films as an assistant. Bharat एक दिन उसने मेरे को एकदम से कहा कि पापा मैं यशराज छोड़ रहा हूँ. मैं कहा क्यों? तो बोले नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे फोटोग्राफी करनी है. अच्छा ही नेवर लर्न फोटोग्राफी. अच्छा बच्चों को क्या आजकल बच्चों से बात करने के लिए आदमी को 2 टाइम सोचना पड़ता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वो उठ के जवाब दे दें आपको. देखिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है और बच्चे कुछ भी बोल देते हैं. तो मैंने कहा ठीक है तुमने किया. तो मैं बहुत परेशान था. मैं कहा यार ये इसने लाइफ में कभी नहीं फोटोग्राफी. एक छोटा सा कैमरा इसके पास, वो कैमरा लेके उसने फोटोग्राफी शुरू की. ना सीखा ना कुछ. आज उसने कैंपेन शूट किए हैं. Louis Vuitton, he shot for Louis Vuitton, he shot for Guess. He's shooting for all the big brands which are in the world. There are actors like Ranveer Singh who does not move an inch without Bharat being there. Oh. And there's lots of actors, lots of actresses. So touchwood, he's very successful because he did finally what his heart told him was correct. जो आपके दिल का है कि सही है वही सही होता है और आदमी को वही करना चाहिए जो आपके दिल का है. छोटा बेटा जो है वो यशराज में असिस्टेंट था, धूम 3 में था पहले असिस्टेंट. फिर उसने यशी के साथ ये किया जिसमें वो यशी की लास्ट फिल्म थी उसमें दिल वाले. नो यशी लास्ट फिल्म विद रणवीर सिंह एंड वानी कपूर. यश जी की जब डेथ हुई उससे पहले जो फिल्म थी उसमें ही बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर. और फिर आदि चोपड़ा आस्क्ड हिम टू डायरेक्ट अ वेब सीरीज. जो पहली वेब सीरीज वायर बनानी थी और उस लड़के ने डायरेक्ट की वेब सीरीज जो मैंने देखी भी नहीं थी. मैंने देखी कंप्लीट होने के बाद. वो थी नेटफ्लिक्स पे रेलवे मैन जो भोपाल के गैस ट्रेजेडी को लेके था. और वो 6 महीने से ऊपर नेटफ्लिक्स पे इंटरनेशनली नंबर 10 शोज के अंदर था.
नंबर 1 था 4 महीने के लिए, फिर वो तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अब वो डायरेक्टर है फिल्म, बिल्कुल। उसका नाम है अल्फा, उसमें आलिया भट्ट है और बॉबी देओल है और ऋतिक रोशन है। देखिए मैं नाम जो कह रहा हूँ मैंने सिर्फ गॉसिप में पढ़ा है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपना काम की बात नहीं करते। भैया मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो आगे सुना देंगे, ये बच्चों का तो कोई भरोसा नहीं आज। हाँ बिल्कुल, और इनको नॉलेज इतनी हो गई है और इन सब बच्चों को लगता है कि बाप हमारे जो है वो सबसे बेवकूफ यही। एक्टिंग फील्ड में जाना है तो एक जब भी कोई जैसे कोई इंसान है तो रैंडमली उसके मन में भी एक डाउट होता है कि रिजेक्शन है तो उसको लगता है कि रिजेक्शन यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये डाउट है, उस डाउट को मन में लेकर उस फील्ड में आगे कैसे बढ़े, और नहीं अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो डायरेक्शन की फील्ड में भी कि एक कैसे अपना आगे हम ग्रो कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि या तो मैं एक्टर बन जाऊं, अगर रिजेक्ट हुआ तो डायरेक्टर बन जाऊंगा। बेटा ऐसे काम नहीं होता, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है और जब आप डिसाइड कर लें, जो आपका दिल कहता है वो करना है, फिर आपको पूरी मेहनत उसी चीज़ पर करनी है। ब्रेक मिलना मुश्किल है, लेकिन आज के ज़माने में इतने एवेन्यू खुल गए हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हैं, ये है वो है, एक्टर्स ये सब टीवी पे आते हैं शॉर्ट फिल्म, और जितने प्रोड्यूसर्स हैं जो सचमुच प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म बनाते हैं लोग, वो सब ये शॉर्ट फिल्म देखते हैं और वहाँ से टैलेंट मिलता है। और याद कीजिए कि आप अपना काम, आपका काम बोलेगा आपके लिए। अमरीश पुरी जी 51 की एज में श्याम बेनेगल जी ने उनको निशांत में मेन कैरेक्टर दिया था। उससे पहले अमरीश जी जो है बहुत फिल्मों में, जैसे मुझे याद है डॉन वगैरह में, जो विलन्स के पीछे खड़े रहते लोग और उनके पीछे जो लोग खड़े रहते जो सिर्फ एक जगह खड़े होके एक्सप्रेशन देते हैं और अजीब अजीब एक्सप्रेशन देते, वो अमरीश जी करते थे। तो बेटा पहले माइंड बना लो कि क्या करना है। ये आप सोचिए कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही करना है, कुछ भी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे हुए केसेस, सुभाष घई जी वो आए थे एक्टर बनने के लिए, बट ही बिकेम अ डायरेक्टर। लेकिन सुभाष इज वन थिंग इज ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, एंड व्हेन ही जॉइन्ड द इंस्टीट्यूट somebody told him why don't you become an actor, तो एक ग्लैमर तो था ही, बट दैट डायरेक्टर ने हिम छोड़ा। तो अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं हुए हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट में कहा कि यार मैं आया एक्टिंग सीखने के लिए, उन्होंने बोला नहीं एक्टिंग में सिलेक्ट नहीं हो गया, चलो मैं साउंड रिकॉर्डर्स बन गया। लेकिन इट डजंट हैपन, यू हैव टू मेंटली डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सर मेरे को ये पूछना है, जब आप राजी के साथ काम करते थे तब डेफिनेटली एक जो सब्जेक्ट पकड़ते थे आप लोग, तो उस पर कॉन्फिडेंट लोग होते थे कि हमें इसी सब्जेक्ट पे काम करना है। तो वहाँ से सिनेमा चलता चलता आज जहाँ OTT आया, आज हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कंटेंट पे कि ये बनाएं, वो भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो उस टाइम से लेकर के आज तक के जो सिनेमा चेंज हुआ है, आप आज की फिल्में भी देखते हो, आज फिल्में देखते ना आप रिलीज होती है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि वो जब हम कॉन्फिडेंट थे उस टाइम जिस सब्जेक्ट पे काम किया कि भले ही 2 साल लगे 1 साल लगे हम इस सब्जेक्ट पे ही काम करेंगे, आज जितना हमारे पास स्ट्रक्चर बढ़ गया है, जितनी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं फिल्म बनाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो हमारे पास ये है ये बहुत कन्फ्यूज़ है कि क्या बनाएं, ये बन सकता है, वो बन सकता है। देखिए आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब है आपने दे दिया जी कि जी ये कन्फ्यूज़न है। प्रॉब्लम ये है कि जितने 90% लोग जो फिल्में बना रहे हैं उनको कोई हक नहीं फिल्म बनाने का, कि वो सिर्फ फिल्म Yes. बना रहे हैं। हाँ, तो उनको हक नहीं है। लेकिन नए लोग बहुत हैं जो फिल्में बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने अभी एक फिल्म देखी, वो है केसरी 2। जी वो फिल्म से निकलने के बाद मैंने डायरेक्टर को ढूंढ के, मैंने अक्षय को फ़ोन किया और उससे डायरेक्टर का नंबर ढूंढा और मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया लड़के को। मुझे इतनी बढ़िया लगी वो फिल्म कि वो लगता है कि आदमी ने मेहनत किया और उसने सोच के क्या, तो हमेशा जो फिल्म बना रहे हैं उसमें दिमाग बहुत चलना चाहिए। और आजकल क्या है, हम स्क्रिप्ट शूट नहीं कर रहे हैं, हम नंबर शूट कर रहे हैं। हमको ये हिसाब करना है कि यार खर्चा कितना होगा और फ्राइडे सैटरडे संडे कलेक्शन क्या होगा।
जी फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं है क्या आपके कैलेंडर में? तो ये है, ये सारा बहुत गलत है जो कर रहा है। आजकल गाने भी जो लिरिक राइटर्स हैं, मुझे तो गाना कोई समझ में नहीं आता है, कौन क्या लिख रहा है क्या कुछ। हमने गाने सुने हुए साहिर लुधियानवी के, जी हमने गाने सुने हुए शैलेंद्र जी के, जी आनंद बख्शी जी के, मगर आजकल क्या मतलब वो कुछ भी लिखते थे, तो क्या बोले इसके? एक टीम वर्क जो पहले वो राज साहब के टाइम में जो लोग पूरी टीम बनती है, म्यूज़िक वाला अपना बेस्ट दे रहा है, लिरिक्स वाला अपना बेस्ट दे रहा है, ऐसे एडिटिंग में सब लोग बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आज एक पैकेज शुरू हो गया है कि हमें आपको फिल्म बना के देनी है पूरी एक। बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं आप। वो जो टीम था, टीम के बगैर एक डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। कोई डायरेक्टर बोले कि जी सारी फिल्म मैंने बनाई है, वो गलत कर रहा है। जी वो फिल्म एक सारी टीम बनाती, और टीम वर्क राजा वाली मैंने देखी हुई है। और एक इंसिडेंट है, मैं आपको बता दूंगा, वो मेरे सामने की बात है। राज साहब को म्यूज़िक का बहुत बड़ा सेंस था जी ये उनको ऊपर वाले ने एक दान दी हुई थी। उन्होंने कभी म्यूज़िक सीखा नहीं था, लेकिन वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो था वो बजा देते थे। वाह कोई भी इंस्ट्रूमेंट। जब नए ये सिंथेसाइजर आए जो कीबोर्ड्स हैं, तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और एक म्यूजिशियन कीबोर्ड लेके आया था, तो रात साहब ने देखा और पूछा कि ये है क्या? तो उसने कहा कि सर ये बस 2 दिन पहले आया और ये ऐसा है कि ये बटन दबाओ तो ये होता है, ऐसा बटन दबाओ, और सर 5 मिनट के अंदर रात साहब उसको बजा रहे थे। वाह तो ये एक ये था उनके अंदर गॉड गिफ्टेड थे। मेरा नाम जोकर में एक म्यूजिक सेटिंग थी जहाँ वो जोकर के लिए एक गाना बनाने वाले थे फिल्म के लिए। तो मुझे जाना था वहाँ पर क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो मैं म्यूज़िक रूम में गया। अब मैं 15.5 साल का वहाँ पर मैं एंट्री किया, और जब मैंने एंट्री की मैंने देखा वहाँ पर राज कपूर, मुकेश जी, शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत साहब, शैलेंद्र जी, ये सब सामने बैठे हुए हैं गाना बनाने के लिए। ऐसे म्यूजिकल माइंड्स और इतना टैलेंट एक साथ बैठा, और मैंने अपने आप को बहुत खुश नहीं समझा कि मैं इनसे मतलब इतने नज़दीक हूँ। और वो बैठ के राज साहब ने उनको बोला कि सिचुएशन ये है, तो वो फिर शंकर जी और जयकिशन जी ट्यून, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर जब ट्यून सुनाते हैं आपको तो उसमें वो डमी वर्ड डाल देते हैं कि वो इजी होता है ट्यून समझने के लिए। डमी वर्ड्स का क्या होता है, जैसे गाना था लव स्टोरी में आई 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 आजा, ये पंचम ने लिखे थे वर्ड्स डमी वर्ड से, लेकिन हमने यूज़ किया फिल्म में क्यों वो अच्छे लगे थे। तो शंकर जी ने कहा कि राज साहब ये ट्यून सुनिए, तो उन्होंने कहा सुनो। अब बहुत सीरियसली ये आदमी बैठे हुए थे, और जब उन्हें ट्यून सुनाई तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ज़मीन फट गई है कि मैं क्या करूं। वो कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, मैं तो कूद जाता वहाँ से, क्योंकि शंकर जी ने एक गाना गाया जिसमें डमी वर्ड्स, जो माँ बहन की गालियाँ आप सोच नहीं सकते वो गालियाँ गा रहे थे। और मैं बोला यार ये क्या है, मतलब ये जो राज कपूर, और सब सीरियस है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। और फिर कोई कह रहा है कि शंकर यार वो जो माँ की है उसको बहन की करके देख लो, ट्यून में वो बहन की बेटर लगेगा। तो ये डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो ये जो लोग थे जो डेडिकेटेड थे म्यूजिक का, वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते थे। वो गालियों में ना थे, इट्स वे ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, लेकिन दे वर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर वर्क, एंड दैट इज अ बिग लेसन टू लर्न। शायद यही कारण है कि उस टाइम की फिल्में भी हम आज याद कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल रिलीज हुई वो हमें याद नहीं याद कर सकते। गाने तो खैर जो कल रिलीज हुए वो नहीं याद है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Any more questions? No, they think no. So they're not. So thank you very much for having a lovely audience. Thank and, you. Thank you very much. I'm very happy to be here, and I hope Chandigarh University में film making का course शुरू है, and I hope I'm there and I will come more often. Definitely. Thank you so much. Thank you so very much, sir, for sharing.
for sharing your incredible experiences and cinematic wisdom with all of us. Question that I want to ask you, that I have been seeing different kinds of films, be it Indian film or international films, the movies like Avengers as well as Brahmastra. When we compare these two films, we see that there is a use of CGI which is very equivalent. We can see that India has the capacity to use CGIs which are of an international level, but we don't have that level of story. The storyline is not that much crispy, and therefore the film enthusiasts like me, they go to international films instead of Indian films. So the question that I want to ask you is, what is lacking behind amalgamate these two things, which is CGI as well as story? What is lacking in the Indian cinema? See, when you're talking about Avengers, and I'm sorry, I'm the wrong person to ask that, because I don't see the Marvel series. Oh. I just don't see them. I find that unreal, because I'm being very honest. But as far as CGI goes, दुनिया में जो CGI का काम हो रहा है, वो काम हो रहा है इंडिया में. जितने एनिमेटर्स हैं दुनिया के, they're all in India. They're all working here and sending it abroad. That's the thing. But अब कहानी कंटेंट की आपको नहीं समझ में आ रही है, जैसे ब्रह्मास्त्र है या अवेंजर्स हैं. तो अवेंजर्स तो मैंने देखी नहीं, क्योंकि मार्वल की पिक्चर हैं, तो मुझे समझ नहीं आती. मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती. और ब्रह्मास्त्र मैंने देखी है, बहुत मेहनत की है, और कंपैरिजन तो फिल्मों में होता है. लेकिन अगर आप कहते हैं CGI अच्छा है क्योंकि वो अमेरिकन फिल्म है, उसका CGI इंडिया में ही हुआ है. तो ये है कि India has the capacity. ये है कि CGI में they spend a little more time in refining it. हमारे यहाँ थोड़ी जल्दी होती है, लेकिन animators they are all from India. In fact, Prime Focus जो company है is belongs to it. They are internationally, they are the best known CGI company in the world. True. In A fact, huge round of in fact, applause for Pune the is CGI. becoming another hub for CGI. No, the hub for CGI is Bangalore. Of course, but because of the proximity of Yeah. Because now CGI, because there's so much of CGI work in the world. demand, yeah. There is films, there is television, there is animation. There is so much of CGI. Even ad films also. They are Ad films, everything, commercials. The media has become so dependent on CGI that there's a shortage of people who really work on the CGI. It's a very difficult thing. True. There's also teams of people who work on. So that is now, asking for more space. Sir, if I would like to add something to this question, when we compare Indian as well as international comic books, they have Marvel, but we too have comic books like Shaktiman and other comic books. Why are we not working in that field to make our legendary superheroes? I agree with you completely. I think what we did not understand is that we never understood that comic book is a different format from cinema. So we had comic books based on cinema-based characters, which is wrong. Raj Saab would only read comics about whatever story he's making. He used to only read comics because he said the way they tell their story, with the frames, is something which I can't think of. So my inspiration is comics. He used to have hordes of comics like this. So the English or Hindi Amar Chitra Katha? Whatever he'd get. And, even animation की जो फिल्में हैं, जो एनिमेशन दुनिया में इतना पॉपुलर है, वो हिंदी में नहीं चलती. क्यों नहीं चलती? आई थिंक बेस जो बना था, जैसे एनिमेशन टॉक अबाउट फिल्म लाइक फाइंडिंग नीमो एंड ऑल आर ऑल ब्रिलियंट फिल्म्स. Thank you so very much, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Indeed, it was great having these experiences and words of insights from all the cinema and industry. Thank you so very much. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं फिर से. And all this wonderful conversation. And we would like you to invite many number of times at Chandigarh University. आप जल्दी से हमारे बीच में फिर आएं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएं.